السلام علیکم۔ ہماتن گوش میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل، جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان۔ گرداب۔ گرداب، قسط نمبر 8۔ حویلی کے سب سے شاندار کمرے میں موجود دونوں نفوس دو مختلف انتہاؤں پر کھڑے تھے۔ ماہبانوں کے لیے یہ قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ 17 سال کی عمر میں وہ ایک بھیانک ترین تجربے سے گزرنے جا رہی تھی۔ خوف کی شدت نے اسے کچھ اس طرح سے مفلوج کر دیا تھا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ذرا سی بھی حرکت نہیں کر پاتی تھی۔ اپنے بچ جانے کے لیے اس کے پاس اگر کوئی امید تھی تو وہ صرف یہ کہ کوئی بیرونی امداد پہنچ جائے، لیکن چودھری افتخار کی اس راجدھانی میں قدم رکھنے کی جرأت کس کو ہو سکتی تھی؟ خود چودھری افتخار کا حال اس سپہ سالار جیسا تھا جو اپنی فتح کے یقینی ہونے کے خیال سے کسی شہر کی فصیل کے باہر کھڑا ہو اور جانتا ہو کہ بس ایک زوردار حملہ حفاظتی دروازے کو توڑ ڈالے گا اور وہ لمحہ بھر کے بعد ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دے گا۔ شراب کی ترنگ اور طاقت کے نشے نے اسے بالکل مدہوش کر ڈالا تھا۔ اس کی سماعتیں اس شور کو سننے سے آ رہی تھیں جو اس کی حویلی کے کسی گوشے میں سے اٹھ رہا تھا۔ اس کی اسی مدہوشی کو دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے توڑا۔ چودھری اس دخل اندازی پر تھوڑا سا ڈسٹرب تو ہوا، لیکن ماہبانوں کو آزاد کرنے پر بہرحال وہ راضی نہ تھا۔ ماہبانوں جو بالکل سن پڑ چکی تھی اس دستک کو سن کر فوراً چونکی۔ اس کے اندر نئے سرے سے توانائی پیدا ہوئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ چودھری افتخار کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے گی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ پوری قوت سے چودھری صاحب کے منہ پر مارا۔ چودھری نے جواب میں ایک گالی دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو بری طرح موڑ دیا۔ ماہبانوں تکلیف کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ اسی وقت دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ دستک پہلے سے زیادہ زوردار اور مسلسل تھی۔ اس وقت کس کی موت آئی ہے جو مجھے پریشان کرنے چلا آیا؟ چودھری جو دستک اور ماہبانوں کی مزاحمت کی وجہ سے اچھا خاصا بدمزہ ہو چکا تھا، بری طرح دھاڑا اور ڈولتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ چودھری صاحب باہر آئیں، غضب ہو گیا، غضب۔ باہر سے بڑی چودھرائن کی پریشان اور خوفزدہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بڑھیا کو چین نہیں آتا، اس پہر بھی تنگ کرنے پہنچ گئی۔ چودھری افتخار بڑبڑایا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے اپنا حلیہ بھی جلدی جلدی ٹھیک کر لیا تھا۔ چودھری صاحب غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ حویلی کے مہمان خانے میں ایک کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ بڑی زوردار طریقے سے لگی ہے۔ نوکر اسے بجھانے کی کوشش میں لگے پڑے ہیں لیکن ابھی تک آگ بجھ نہیں سکی۔ منشی نے مجھے کہلوایا ہے کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ مہمان بڑا ہی خاص بندہ ہے، کسی موتی والا کے بیٹے کا نام لیتی ہے وہ، نچھی ہے نا، اس نے ہمیں بتایا۔ چودھرائن جانتی تھی کہ چودھری اپنے آرام میں اس طرح بے وقت مخل ہونے پر سخت ناراض بھی ہوگا، اس لیے دروازہ کھلتے ہی جلدی جلدی پوری تفصیل سنانے لگی۔ کمرے کا دروازہ کچھ ایسے رخ پر تھا کہ وہاں سے چودھری کا بیڈ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ماہبانوں ابھی تک اسی بیڈ پر پڑی تھی، اسی لیے چودھرائن کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ اس کا شوہر اپنے بند کمرے میں کون سا کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ تو واقعی غضب ہو گیا، میں خود چل کر دیکھتا ہوں۔ بڑی چودھرائن کی دی ہوئی اطلاع نے چودھری افتخار کا سارا نشہ حیران کر دیا اور وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے تیزی سے باہر نکلا۔ اپنے کمرے میں موجود ماہبانوں کی طرف سے اس کا دھیان بالکل مکمل طور پر ہٹ چکا تھا۔ موتی والا سے اس کے بہترین کاروباری مراسم بھی تھے۔ اگر اس کے بیٹے کو حویلی میں کچھ ہو جائے گا تو چودھری افتخار کو بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ یوں بھی ماہبانوں کا کیا تھا، اسے تو وہ پھر کسی وقت دوبارہ حاصل کر سکتا تھا۔ چودھری اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو ماہبانوں کے کانوں تک بھی پہنچی۔ چودھری کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ پھرتی سے کھڑی ہوئی۔ چودھری اپنی منہ زوری میں اس کے لباس کو تار تار کر چکا تھا۔
महबानों ने बिस्तर पर बिछी हुई बड़ी सी चादर घसीटकर अपने पूरे वजूद को उसमें लपेट लिया और कमरे से तेजी से बाहर निकली। कमरे में धीमा धीमा सुनाई देने वाला शोर अब बहुत वाज़ेह सुनाई दे रहा था। महबानों ने चुपके से बैरूनी हिस्से का रुख किया। हवेली के मकीनों के रिहायशी हिस्से से कदरे हटकर बनाए गए मेहमान खाने में उस वक्त कोहराम मचा था। आग के शोले और धुआं दूर से भी नजर आता था। मुलाजमीन पानी की बाल्टियां और चारपाइयों की मदद से आग बुझाने की जिद्दोजहद करते थे। मुतासिरा कमरे के अलावा दूसरे कमरों में मौजूद मेहमान भी बाहर निकल चुके थे और खौफो हिरास से खड़े तमाम कार्रवाई गौर से देख रहे थे। हमेशा उम्दा सूटों में मलबूस, अच्छे तरीके से तैयार रहने वाले उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी को उस वक्त अपने हुलियों का भी होश न रहा। वो शब ख्वाबी के लिबास में आधे अधूरे कपड़ों में अपनी जान बचाने के ख्याल से अपने कमरों से बाहर निकल भागे थे कि कहीं एक कमरे में लगी हुई आग उनके कमरों तक भी रसाई हासिल न कर सके। उनकी ये तशवीश इतनी गलत भी तो न थी। बराह रास्त आग की जद में मौजूद कमरे के दाएं बाएं मौजूद दोनों कमरे अब जुज़वी तौर पर आग से मुतासिर होने लगे थे। महबानों ने इस सारे मंजर पर एक सरसरी सी निगाह डाली और हवेली से बाहर की राह ले ली। लोगों के हुजूम में उसने चौधरी इफ्तिखार आलम शाह को भी देखा, जो चीख चीख कर अपने कारिंदों को आग बुझाने के सिलसिले में हिदायत दे रहा था। मेहमान खाने में लगी आग के मुकाबले में महबानों के लिए चौधरी इफ्तिखार का वजूद ज़्यादा बड़ा अफरियत था। अगर हवेली में ये हादसा पेश न आया होता तो चौधरी इफ्तिखार महबानों को बर्बाद भी कर चुका होता। महबानों की बर्बादी हवेली के उस मेहमान खाने की बर्बादी से ज़्यादा बड़ी बात होती, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ महबानों के लिए। हवेली के मेहमान खाने को इस तबाही के बाद दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता था। महबानों बर्बाद होती तो उसके नुकसान का अजाला मुमकिन न था। अपने बच जाने की खुशी को तो फ़िलहाल महबानों पूरी तरह महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन बहरहाल उसे इस बात का एहसास था कि दस्ते कुदरत ने बिल्कुल ऐन मौके पर उसकी मदद फरमाई है। वो वहशत ज़दा सी हवेली से अपने घर की तरफ जाने वाले टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे और अंधेरे रास्तों पर दौड़ती चली जा रही थी। ये रात का बिल्कुल आखिरी पहर था। आम हालात में वो इस वक्त घर से बाहर कदम रखने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब उसे अंधेरे और रास्ते में जगह जगह भौंकते कुत्तों का भी एहसास बिल्कुल न था। ये दोनों चीज़ें चौधरी इफ्तिखार से कम ख़तरनाक थीं। नूरा और ज़ोहरा बिस्तरों में दुबके बेखबर सो रही थी। थकन और सर्दी के बायस उनकी नींद बहुत गहरी थी, मगर दरवाजे पर उभरने वाली दस्तक इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि उन दोनों ही की आंख खुल गई। हकीकतन दस्तक देने वाले ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं था, बल्कि धड़धड़ाया था। तेरा अब्बा आ गया है शायद, जल्दी कर। नूरा ने ज़ोहरा की तरफ देखते हुए ख्याल जाहिर किया और बमुश्किल बिस्तर से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ तेज़ी से लपकी। गयास मोहम्मद को भी और बहुत से मज़ारों की तरह उर्स के ख़ात्मे के बाद दरगाह के कामों के लिए रोक लिया गया था। दिन भर मौजूद रहने वाले लोगों के जम्मे गफ़ीर की वजह से वहाँ अच्छा खासा फैलावा फैल चुका था। वहाँ होने वाले इस फैलावे और कूड़े करकट को रात भर में ही समेट कर दरगाह को पहले वाली साफ़ सुथरी हालत में दोबारा से लाने की जिम्मेदारी इन तमाम मज़ारों के सर पर थी। बरसों से यही मामूल था कि उर्स के ख़ात्मे के बाद दरगाह की सफाई के लिए अगले दिन का सूरज निकलने का इंतज़ार भी नहीं किया जाता था, बल्कि रात ही रात में कई मज़ारे मिलकर ये काम अंजाम देते थे। अगले रोज़ दूर दराज के गांव से आने वाले तमाम मोतक़िदीन रवाना हो जाते, जो रात हो जाने के बायस फौरी तौर पर रवाना होने के बजाय दरगाह के अहाते में रुक जाया करते थे। इन तमाम मोतक़िदीन की रवानगी के बाद दरगाह की एक बार फिर तफसीली सफाई की जाती, जिसके लिए मज़ारों की दूसरी खेप काम करती थी। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर नूरा ने यही ख्याल किया था कि गयास काम से फारिग होने के बाद वापस घर पहुंच गया है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास हुआ गयास नहीं है। वो जो भी था चादर में लिपटा एक ढेर की सूरत दरवाजे पर पड़ा था। नूरा ने झुककर उस ढेर का जायज़ा लिया। उसे चादर में से महबानों का चेहरा नजर आया। महबानों बेहोश नहीं थी, लेकिन नीचे गिरी
कुछ इस अंदाज में सांसें ले रही थी जैसे उसमें हिलने जुलने की सकत बाकी ना रही हो। ज़ोहरा, जल्दी से भाग कर इधर आ, जल्दी कर। नूरा ने पहले तो खुद माहबानो को उठाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसका जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ था इसलिए अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी थी और घबरा कर ज़ोहरा को आवाज़ दे डाली। ज़ोहरा माँ की आवाज़ में मौजूद घबराहट को महसूस करके तेज़ी से उठकर बाहर निकल आई। माहबानो को इस वक्त दरवाजे पर गिरे देखकर उसका भी मुंह हैरत से खुल गया। छेती कर, जल्दी कर, इधर आ, इसे मेरे साथ जल्दी से उठवा ले। नूरा ने ज़ोहरा को टोका तो वो तेज़ी से आगे बढ़ी और नूरा के साथ मिलकर उसे उठाने लगी। दोनों ने मिलकर माहबानो को कमरे तक पहुंचाया और चारपाई पर लेटा दिया। दरवाजे से बिस्तर तक मुंतकिली के इस अमल में माहबानो के जिस्म पर लिपटी चादर गिर गई और उसका जगह जगह से फटा हुआ लिबास आया हो गया। ये क्या? नूरा ने घबरा कर माहबानो का जिस्म टटोलना शुरू कर दिया और फिर किसी नुकसान को महसूस ना करके इत्मीनान की सांस लेते हुए उसके जिस्म पर लिहाफ ढांप दिया। माहबानो जो सर्दी और खौफ के बाइस कपकपा रही थी, गरम बिस्तर की फरहत और घर के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने पर कुछ मुतमईन सी होकर गशी में चली गई। नूरा और ज़ोहरा अलबत्ता परेशान सी उसके करीब ही बैठी रही। माहबानो हवेली में थी और अब जिस हाल में वो घर वापस आई थी इसका जिम्मेदार हवेली से वाबस्ता कोई फ़र्द ही हो सकता था, और वो फ़र्द कौन था इसका जवाब सिर्फ माहबानो ही दे सकती थी, लेकिन वो इस वक्त बेहोश थी। इसी आलम में सुबह हुई। नूरा की तवक्को के खिलाफ गयास मोहम्मद सुबह बहुत देर से घर वापस आया। इस दौरान ज़ोहरा इलियास को नाश्ता करवा के मस्जिद के लिए रवाना कर चुकी थी। इलियास को स्कूल में दाखिल करवाने के बजाय मस्जिद में मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था। गयास मोहम्मद के ख्याल के मुताबिक इलियास को भी उसकी तरह खेतों में हल चलाने और हवेली की खिदमत के काम सरअंजाम देने थे, और इन कामों के लिए स्कूल की तालीम की कतई ज़रूरत पेश नहीं आती थी। अलबत्ता मौलवी साहब के पास जाने का मामला अलग थलग था। इलियास के वहाँ जाने से उन्हें उसकी और अपनी आखिरत संवारने की उम्मीद भी नज़र आती थी। फिर वहाँ जाने में चौधरी इफ्तिखार की नाराज़गी का भी कोई खदशा मौजूद नहीं था। मौलवी साहब को चौधरी इफ्तिखार की हिमायत हासिल थी। स्कूल की मुखालफत भी वो बहुत खुलकर तो नहीं करता था, लेकिन उसके वो सरसरी से अकवाल मज़ारों के कान में ज़रूर पढ़ते रहते थे, जिनका लुबे लुबाब यही था कि स्कूल की तालीम गांव के उन तमाम बच्चों की दुनिया और आखिरत संवारने में कोई मदद नहीं दे सकेगी। खेतों में हल चलाने का काम वो बग़ैर तालीम के भी बखैर खूबी अंजाम दे सकते थे, जबकि आखिरत संवारने के लिए मौलवी साहब के पास जाना मुनासिब था। चुनांचे इलियास को स्कूल में दाखिल नहीं करवाया गया था। रात हवेली में बड़ा हंगामा रहा। जाने कैसे एक मेहमान के घर में आग लग गई। सुना है वो मेहमान शहर के एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है। बेचारा आग में झुलसकर खाक हो गया। सुबह से पुलिस के बड़े बड़े अफसर हवेली पहुंचे हुए हैं। लड़के की लाश को लोगों ने शहर भिजवा दिया। चौधरी साहब बड़े परेशान और गुस्से में नज़र आते थे। मैं तो खैर दूसरे लोगों के साथ दरगाह पर मौजूद था, लेकिन हवेली से खबर लेकर आने वाले एक शख्स ने बताया कि मेहमान खाने के 3-4 कमरे जल पड़े। हालांकि बेचारे मुलाजमीन ने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन कुछ न बन पड़ा। 2 तो खुद इस कोशिश में अच्छे खासे जल गए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा जान से चला गया। चौधरी साहब का परेशान होना तो ज़रूर बनता था कि उनकी हवेली में उनका मेहमान जान से चला गया। गयास ने घर आते ही नूरा को हवेली में होने वाले हादसे के बारे में पूरी तफसील बता दी। पर आग लगी कैसे थी? नूरा ने हैरत से सवाल किया। मुझे क्या मालूम, पुलिस वाले आए थे, वही छानबीन करके कुछ बताएंगे। अभी तो तू बस ये कर कि मुझे जल्दी से नाश्ता पानी दे दे। रात भी मन्नत मांगने के चक्कर में मैं लंगर से अपना हिस्सा बिल्कुल हासिल न कर सका था। अब भी बड़ी मुश्किलों से नज़र बचाकर वहाँ से निकला हूँ कि पेट की आग बुझाकर दोबारा उधर चला जाऊँगा। आज तो सारा दिन उधर ही खिदमत में गुजारना पड़ेगा, वरना चौधरी साहब का गुस्सा तो किसी पर भी निकल सकता है। पिछले पूरे दिन की थकन और रात की जगार ने गयास का हाल भी बहुत बुरा कर रखा था, लेकिन इन तमाम नाजुक लम्हात में वो घर बैठकर आराम करने की कोई गलती नहीं कर सकता था।
नूरा ने जल्दी जल्दी उसे नाश्ता बना कर दिया और उसके घर से निकलने से पहले ज़ोहरा को महबानों के मुताल्लिक चंद हिदायत देकर खुद भी हवेली के लिए रवाना हो गई। उसे आज मामूल से बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो डर रही थी कि कहीं उसे इस देर का खमियाजा ना भुगतना पड़े। लेकिन हवेली की सारी करता धरता खवातीन खुद इतनी शदीद परेशानी में थीं कि उन्हें नूरा के देर से आने की खबर भी ना हो सकी। नूरा खामोशी से अपने हिस्से का काम निपटाकर वापस घर आ गई। महबानो अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी थी, अलबत्ता ज़ोहरा ने उसका लिबास तब्दील करवा दिया था। महबानो का पूरा जिस्म बुखार से जल रहा था। नूरा ज़ोहरा को ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने की हिदायत देकर खुद हकीम से दवा लेने चली गई। दवा लाकर उसने महबानों को खिलाई। ठंडे पानी की पट्टियों और दवा के असर से महबानों के बुखार की शिद्दत कुछ कम हुई। अगले दिन इतवार था। तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सफदर अलस सुबह उसे वापस ले जाने के लिए गांव पहुंचा। महबानों की उतरी हुई शक्ल देखकर उसे कुछ तशवीश हुई। नूरा ने महबानों की बीमारी का बहाना बनाकर सफदर को मुतमईन करने की बहुत कोशिश की। महबानों अलबत्ता खामोश रही और इसी खामोशी के आलम में सफदर के साथ फैसलाबाद जाने के लिए रवाना हुई। नूरा को मौका ही ना मिल सका कि वो महबानों से उसके साथ बीते हादसे के बारे में कुछ तफसीलात पूछ सके। एक्सपर्ट्स ने हादसे से मुताल्लिक अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। उनकी राय के मुताबिक आग लगना एक इत्तफाकी हादसा था जो मरने वाले की अपनी गफलत से पेश आया। हादसे से पहले उसने शराब नोशी करते हुए शायद कुछ शराब अपने बिस्तर पर भी गिरा दी थी। फिर मदहोशी के आलम में उसने सिगरेट का टोटा या जलती हुई दिया सलाई भी बिस्तर पर ही फेंक दी। नतीजतन आग भड़क उठी। इस आग ने तेजी से बिस्तर से कारपेट और पर्दों तक का सफ़र तय किया। तहकीकाती टीम की इस राय को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी तक़वियत मिल रही थी। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक लड़के ने बेतहाशा शराब पी रखी थी। उसके मैदे में अल्कोहल की बहुत मिकदार मौजूद थी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया था कि लड़के ने शराब के साथ साथ चर्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो शख्स जो बैक वक्त शराब और चर्स के नशे में मदहोश हो, जहनी तौर पर किस हाल में मौजूद होगा। ऐसे शख्स के साथ किसी हादसे का पेश आ जाना कतई मंतकी सी बात थी। चौधरी इफ्तिखार आलम शाह के वसी ड्राइंग रूम में बैठा शहरियार उसे हादसे के बारे में माहिरीन की राय से आगाह कर रहा था, जबकि चौधरी के चेहरे पर पिछले 3 दिन से छाया तनाव अब भी मौजूद था। शहरियार की फराहम करदा मालूमात को सुनकर उसके नथने फड़कने लगे और वो गुस्से से बोला, करतूत देखो लड़के के, कमबख्त आदि नशेबाज था और मोती वाला मुझसे यूं उखड़ा हुआ है जैसे मैंने उसके पुत्र की जान ले ली। ठीक है, मुझे भी हादसे का अफसोस है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि उसका पुत्र मेरी हवेली में अपनी जान से चला गया, लेकिन उसकी जान जाने में मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। मेरे नौकरों ने अपनी जान पर खेलकर आग बुझाने की कोशिश की। मैंने खुद फ़ोन करके शहर से फायर ब्रिगेड को बुलवाया, लेकिन लड़के की मौत आ चुकी थी तो उसे कौन बचा सकता था। किसी के मरने जीने पर मेरा तो कोई इख्तियार नहीं ना। मैंने कोशिश की थी कि मोती वाले का गम बांट सकूं। मैं खुद मैयत के साथ उसके घर गया, अफसोस भी किया कि मेरी हवेली में उसके पुत्र को ऐसा जानलेवा हादसा पेश आया, लेकिन उसने मुझसे सीधे मुंह बात तक न की। फिर मैंने लड़के के स्वयं पर अपनी तरफ से खाने की देगें बनाकर भेजी तो उसने वो वापस भिजवा दी। इतना शानदार खाना, लाख से ऊपर खर्च किया था मैंने उस खाने पर। सारा का सारा यतीम खाने को भिजवाना पड़ा। चौधरी इफ्तिखार को अपनी रकम ज़ाया होने का शदीद दुख नज़र आता था। वो रकम जो उसने अपने कारोबारी मरासिम को मजबूत बनाए रखने के लिए मोतीवाला के बेटे के स्वयं पर खर्च की थी, यतीम खाने को भिजवानी पड़ी। और जब ये रकम यतीम खाने में लग गई थी तो ये उस जैसी जहनियत रखने वाले बंदे के हिसाब से तो अच्छा खासा नुकसान था। मोतीवाला उसका बिजनेस पार्टनर था। वो उसके भिजवाए हुए खाने को बेटे के स्वयं में आए हुए लोगों को खिलाता तो चौधरी को तसल्ली हो जाती कि मोतीवाला से इस हादसे के बाद भी उसके मरासिम बिगड़े नहीं हैं बल्कि बरकरार हैं। दूसरे ये कि स्वयं में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को भी जब ये इल्म होता कि स्वयं का इतना शानदार खाना चौधरी इफ्तिखार की तरफ से आया है तो वो उसकी दरिया दिली से बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आती। लेकिन मोतीवाला के टेढ़ेपन की वजह से खाना पहुंच गया कहाँ पर? यतीम खाने पर। अब यतीम खाने में मौजूद
भूखे नंगे बच्चों के इस दावत शिराज से फ़ायदा उठाने से चौधरी इफ्तिखार को क्या मिल सकता था? कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता था। वो बेचारे बच्चे इस खाने को खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी इफ्तिखार को दुआएं ही दे सकते थे, और उनकी दुआओं की इंतहा यही होती कि अल्लाह ताला बाद अज़ मर्ग चौधरी इफ्तिखार को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। तो भला चौधरी इफ्तिखार को जन्नत की क्या आरज़ू होगी? वो तो दुनिया में भी जन्नत में ही रहता है, आखिरत में जाकर जन्नत में क्या करेगा? जाने दें चौधरी साहब, जाने दें। आपने जो अपना फ़र्ज़ समझा वो अदा किया। अब ये बात मोतीवाला पर है कि वो हक़ाइक़ को कबूल करता है या नहीं। मेरे ख़याल में तो अभी उसे सदमे से निकलकर हक़ाइक़ का तज़किया करने में कुछ वक्त लगेगा। आखिर उसका अकलौता बेटा मरा है, कुछ कम तो नहीं। वो अपने इस गम की वजह से तकरीबन पागल हो रहा है। गम में उसे कुछ सुझाई नहीं देता कि किस किस को इस हादसे का ज़िम्मेदार ठहराए। मुझसे भी और मामू जान से भी काफ़ी शिकवे शिकायत कर रहा था। अब वो बेचारा जिस कैफियत में मौजूद है, हम उससे ये तो नहीं कह सकते ना कि जनाब आपका बेटा खुद अपनी मौत का ज़िम्मेदार है। अगर नशे ने उसकी मत ना मारी होती तो वो इस हादसे का शिकार ही क्यों होता। ना ही हम उससे ये कह सकते हैं कि आपने अकलौते बेटे को दुनिया जहान की आसाइशें फराहम करके उसे अय्याशी करने के लिए बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया था। ठीक है, अकलौता बेटा था, आदमी का बस नहीं चलता कि अकलौती औलाद के लिए क्या कुछ कर डाले, मगर औलाद पर चेक तो रखना चाहिए था ना। उसका अंजाम तो किसी न किसी हादसे की शक्ल में सामने आना ही था ना। वो यहाँ हवेली में लगने वाली आग से न मरता तो शहर में किसी ज़्यादा रश वाली सड़क पर एक्सीडेंट से मर जाता। मगर जाहिर है मैं और मामू जान मोतीवाला से उसके दुख पर ताज़ियत करने गए थे। हम उससे ये सब बातें तो नहीं कह सकते थे ना। चुनांचे सिर्फ अफसोस करके वापस आ गए। शहरियार चौधरी इफ्तिखार के अंदाज़े फ़िक्र को अच्छी तरह से समझता था, मगर उस पर कुछ जाहिर किए बगैर इस अंदाज में बात करने लगा जैसे वो खुद चौधरी इफ्तिखार का हिमायती नज़र आता हो। वैसे उसने मोतीवाला के बेटे के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया था वो बिल्कुल हकीकी थे। असल बात यह है एसी साहब कि ये मोतीवाला जैसे नौदौलतिये पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन उनमें और उनकी औलादों में इतना ज़र्फ नहीं होता कि इस पैसे को सहार सकें। वरना पुत्र तो मेरा भी अकलौता ही है। हमने उसके लाड भी ज़रूर उठाए हैं, लेकिन बिगड़ने नहीं दिया उसे। आज देखें अमेरिका में बैठा हुआ है, तालीम का बड़ा शौक़ है उसे इसी शौक़ की वजह से वापस यहाँ नहीं आने देते। मगर फर्माबरदार इतना है कि मैंने कहा पुत्र ब्याह अपने ख़ानदान में ही करना है, तो उसने मेरे हुक्म पर ज़रा सी चूं भी नहीं की और यहाँ आकर ख़ानदान की लड़की ब्याह कर साथ ले गया। एक बार नहीं कहा कि अब्बा जी मैं अमेरिका का पढ़ा लिखा बंदा गांव की अनपढ़ लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकूंगा। और तो और अगर वो चाहता तो मेरी बात रखने को सिर्फ ब्याह कर लेता और बोटी को यहीं छोड़कर खुद अमेरिका में अपनी पसंद की किसी लड़की से ब्याह कर लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी ना किया। बीवी अपने मयार और मिजाज से अलग है, फिर भी उसे पूरी तरह से अजीज़ रखा हुआ है। बच्चे उसके वहाँ अमेरिका के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं यहाँ से खर्चा पानी भेजता रहता हूँ, लेकिन खुद भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा। वहाँ की एक बहुत बड़ी फर्म में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। तो बात यह है एसी साहब के ख़ानदानी लोग अलग ही पता चलते हैं। ये मोतीवाला जैसे नौदौलतिये अपनी औलादों का हशर ख़राब करके रख देते हैं। मोतीवाला की हैसियत ही क्या थी, छोटी सी फर्नीचर की दुकान लेकर बैठा हुआ था। मैंने हाथ थामा तो शहर में ये बड़े बड़े शोरूम खोल डाले उसने। अब उसके कारखाने में तमाम काम होता है कि आए दिन नए कारीगर भर्ती करने पड़ते हैं, लेकिन ये सब मेरी वजह से ही था ना। मुझे अकड़ दिखाते हुए ये नहीं सोच रहा था कि मैं हाथ खींच लूँ तो सारा कारोबार चौपट पड़ जाएगा। मैं फ़िलहाल इसलिए बर्दाश्त से काम ले रहा हूँ कि जवान पुत्र गया है उसका, थोड़ा सा संभलने का मौका दे दूँ उसे। दिमाग ठिकाने पर आएगा ना तो उसे खुद अपने सलूक का एहसास हो जाएगा। अगर एहसास ना हुआ तो मैं खुद उसका दिमाग ठिकाने पर ले आऊँगा। मुझसे अड़ी लगाकर वो अपने कारोबार को कभी नहीं चला सकेगा। चौधरी इफ्तिखार के अंदाज में जहाँ अपने ख़ानदानी होने का गरूर और बेटे की काबिलियत और फर्माबरदारी का फ़ख्र मौजूद था, वहाँ उस फ़िरौनियत का भी इजहार कर दिया गया कि जिसने भी मेरे सामने सर ना झुकाया
تو میں اسے نیست و نابود بھی کر ڈالوں گا۔ یہ خیالات تھے جناب کے۔ آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، بالکل فکر نہ کریں، میں خود بیچ میں پڑھ کر اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں موتی والا کو آپ سے شکایت اس وجہ سے بھی تھی کہ ان کے خیال میں آپ نے اپنے علاقے کا حکمران ہونے کی وجہ سے یہاں ترقی کے کام بہت کم کیے ہیں۔ اگر آپ کوشش کرتے تو یہاں کوئی فائر اسٹیشن نہ صحیح مگر پکی سڑکیں تو بن جاتی کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بروقت پہنچ کر آگ بجھانے کا کام کر سکتی تھیں۔ ایک تو آگ لگنے کے بہت دیر بعد آپ نے فون کیا، پھر جو 2 گاڑیاں آگ بجھانے کے لیے آئیں بھی ان میں سے بھی ایک کچے راستے میں پھنس کر ناکارہ ہو گئی۔ شہریار بظاہر دوست اور ہمدرد بن کر چودھری افتخار کو رگڑنے کی پالیسی پر عمل پیرا نظر آتا تھا۔ اس نے موتی والا کے نام سے چودھری افتخار کو جتا دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کا حکمران اور سیاسی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام ہے اور اس کا علاقہ نہایت غیر ترقی یافتہ علاقہ ہے۔ مگر چودھری افتخار بھی کوئی اتنی آسانی سے رگڑائی میں آنے والا بندہ تو نہ تھا۔ اپنی کوتاہی کو قطعی طور پر نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے بولا، فضول بکواس کرتا ہے سالہ، اگر فائر بریگیڈ والے جلدی بھی پہنچ جاتے تو اس کا پتر تو کسی حال میں بچنے والا تھا ہی نہیں، وہ تو بستر کے ساتھ ہی جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ نوکروں کو تو بہت بعد میں آگ لگنے کا معلوم ہوا تھا۔ اگر دیر ہونے سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ میں ہوں۔ میرا مہمان خانہ اس مردود نشے باز کی بے احتیاطی کی وجہ سے بالکل برباد ہو گیا۔ میرے مہمان الگ بے آرام اور خوفزدہ ہوئے۔ میرے اپنے 2 بندے اچھے خاصے جل گئے تھے آگ بجھانے کے چکر میں، لیکن میرے ان سارے نقصانات کو نظر انداز کر کے وہ موتی والا صرف اپنے پتر کو روئے چلا جا رہا ہے۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ موتی والا پر ہر جانے کا دعویٰ کروں کہ اس کے پتر کی وجہ سے میرا جو اتنا مالی نقصان ہوا ہے وہ پورا بھی کر ڈالے۔ لاکھوں روپے لگے تھے مہمان خانے پر، آگ میں سب کچھ جل بھن کر برباد ہو گیا۔ اب نئے سرے سے وہاں پر کام بھی کروانا پڑے گا۔ حویلی میں تو آئے دن مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، مہمان خانہ تو مجھے فوری طور پر بالکل ٹھیک ٹھاک کروانا پڑے گا۔ ٹھیکیدار سے میری بات بھی ہو چکی، لیکن کام اس لیے شروع نہیں کروایا کہ پولیس والے اپنی کارروائی پوری کر لیں اور کلیئرنس دے دیں۔ مجھے اندازہ ہے چودھری صاحب، بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ آپ کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے۔ میں نے خود ایس پی صاحب کے ساتھ آپ کے مہمان خانے کا جائزہ لیا تھا، مگر دیکھیں سامنے والے کے پاس آپ کی کچھ کمزوریاں بھی تو موجود ہیں نا، جن کو دلیل بنا کر وہ آپ پر الزام تراشی کرتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان چھوٹے موٹے مسائل کو حل کر دیں تاکہ لوگوں کے پاس انگلیاں اٹھانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب تو ویسے ہی میڈیا نے اچھی خاصی ترقی کر لی ہے۔ پہلے الیکٹرانک میڈیا پر صرف پی ٹی وی کا راج تھا، اب نئے نئے چینل کھل گئے ہیں۔ آنے والے 2-4 سالوں میں یہ چینلز ملک میں طوفان برپا کر دیں گے۔ 24 گھنٹے کی نشریات جاری رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ جب انہیں کچھ نہیں ملے گا تو اس طرح کے ایشوز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ میڈیا کے اس طوفان کی زد میں آنے سے پہلے کچھ پیش بندیاں کر لی جائیں تو بہتر رہے گا۔ ہم سرکاری ملازمین کا کیا ہے، آج یہاں کام کر رہے ہیں، کل کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کو تو اپنے علاقے میں ہی رہنا بسنا ہے نا۔ اس سے پہلے کہ آپ پر میڈیا کا حملہ ہو، مستقبل کی منصوبہ بندی شروع کر لیں۔ شہریار نے لیاقت رانا کے مشوروں پر کافی غور کیا تھا، چنانچہ اب وہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے چودھری افتخار سے براہ راست متصادم ہونے کے بجائے دوست بن کر اسے خوفزدہ کرنے اور اپنی مرضی کی راہ پر لانے کی کوشش میں مصروف عمل تھا۔